بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما إياك نعبد وإياك نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد يا عليم علمني يا عليم علمني يا عليم علمني يا عليم علمني الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم اور احسان ہے کہ رمضان کے ان مبارک لمحات میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے ایک اہم کورس پیش کرنے کا موقع اللہ رب العزت نصیب فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے اور ہر قسم کے شرور اور فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ خیر و عافیت کے ساتھ اس کورس کو مکمل کرانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما دے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ زکوٰۃ جو ہے یہ اسلام کے جو بنیادی اور اہم ارکان ہے ان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ تو انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے زکوٰۃ کے حوالے سے جو اہم اور بنیادی مسائل ہے وہ ذکر کریں گے۔ زکوٰۃ کی فضیلت بیان کرنا بھی مقصود نہیں ہے اور زکوٰۃ کی اہمیت وغیرہ آپ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، مختصراً میں ذکر کر دوں گا۔ اصل ہمارا مقصود جو ہے وہ زکوٰۃ کی اہم اور بنیادی مسائل کو بیان کرنا ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ اسلام کے بنیادی فرائض میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں جہاں نماز کا ذکر فرمایا وہاں زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کا جو شر ہوتا ہے، برائی ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے اور انسان اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچتا ہے۔ انسان کا مال جو ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے پاکیزہ ہو جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے غرباء، مساکین، مستحقین اور ضرورت مندوں کی مدد بھی ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ادا زکات مالہ فقد ذہب عنہ شرہ، کہ جس شخص نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو اس سے اس کے مال کا شر جو ہے وہ دور ہو گیا۔ اسی طرح حدیث قدسی میں ہے، قال اللہ تعالی یا ابن آدم انفق علیک، کہ اے آدم کے بیٹے آپ خرچ کیجئے، میں تجھ پہ خرچ کروں گا۔ تو سب سے پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اسی لیے اللہ کی رضا کے لیے انسان کو زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے، زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ تاہم جب انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے مال میں بھی برکت نصیب فرما دیتے ہیں، اس کے مال میں بھی برکت نصیب فرماتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹھاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اسی طرح فرشتہ بھی اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر صبح دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرما دے، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم اعط ممسکا تلفا، اے اللہ روک کر رکھنے والے کے مال کو ہلاک کر دے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ زکوٰۃ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی بلکہ انسان کا مال اور بڑھ جاتا ہے۔
हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मौजूद है, मा नक़सत सदक़तुम मिन माल, कि कोई सदका किसी माल में कमी नहीं करता। बल्कि बाज़ औक़ात ये होता है कि उधर एक मुसलमान ने ज़कात निकाल ली, दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने उसकी आमदनी के दूसरे ज़राए पैदा कर दिए और उसके ज़रिए उस ज़कात से ज़्यादा पैसा उसके पास आ गया। और बाज़ औक़ात गिनती के एतबार से पैसे तो कम हो जाते हैं, लेकिन बकिया माल में अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी बरकत होती है कि थोड़े माल से ज्यादा फवायद हासिल हो जाते हैं, थोड़े माल से ज्यादा फवायद हासिल हो जाते हैं। और अगर हम ज़कात अदा नहीं करते तो इस पर सख्त वाइदात का वादा किया गया है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। यानी जो लोग जिन पे ज़कात फर्ज है वो ज़कात अदा नहीं करते, उनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया, वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल-फ़िज़्ज़ता, कि जो लोग सोने और चांदी को जमा करते हैं, वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, और उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, तो उनको एक दर्दनाक आज़ाब की खुशखबरी दे दीजिए, इत्तला दे दीजिए। यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नमा, जिस दिन उस दौलत को जहन्नुम की आग में तपाया जाएगा। फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, फिर उससे उन लोगों की पेशानियों और उनके पहलुओं और उनके पुश्तों को दागा जाएगा और उनसे कहा जाएगा, हाजा मा कनस्तुम लिअनफुसिकुम, ये है वो खजाना जो तुमने अपने लिए जमा किया था। फज़ूकू मा कुंतुम तकनिज़ून, अब छको इस खजाने का मजा जो तुम जोड़ जोड़ के रखा करते थे। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। तो जब कोई आकिल बालिग मुसलमान मर्द या औरत जक़ात के निसाब का मालिक हो जाए, यानी उसके ऊपर जक़ात लाजिम हो जाए, तो उसके लिए जक़ात के मसाइल और अहकाम को जानना फर्ज हो जाता है। अगर उसमें वो कोताही करेगा तो गुनहगार होगा। और जो शख्स साहिब निसाब ना हो, यानी जिसके ऊपर जक़ात फर्ज नहीं है, उसके लिए अहकाम, जक़ात के अहकाम को सीखना ये मुस्तहब है। जक़ात के अहकाम को सीखना ये क्या है? मुस्तहब है। वैसे भी हर मुसलमान जिस फील्ड से उसका ताल्लुक है, उसे चाहिए कि अपनी फील्ड से मुतालिक मसाइल को सीख ले। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इन वर्कशॉप के ज़रिए से एक बहुत अच्छा बड़ा अहम मौका नसीब फरमाया है कि दीन के जो बुनियादी बुनियादी मसाइल है वो मुख्तसर वक्त में हम सीख लेते हैं। अल्लाह ताला हमारे इल्म में भी बरकत नसीब फरमा दे, हमारे अमल में, हमारे औकात में, हमारे रिस्क में बरकत नसीब फरमा दे और हमें इल्म नाफी नसीब फरमा दे, दीन का सही फहम नसीब फरमा दे। तो आज जो हम ये कोर्स शुरू करने जा रहे हैं उसके अहम मज़ामीन आपके सामने लिखे हुए हैं। इंशाअल्लाह तफसील के साथ हर एक पर हम गुफ्तगू करेंगे, तफसील के साथ हर एक पे हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि ज़कात किस शख्स पे फ़र्ज है। सबसे पहले हमने क्या समझना है कि ज़कात किस शख्स पे फ़र्ज है, किस पे फ़र्ज है, किस पे फ़र्ज नहीं है। दूसरे नंबर पे ज़कात किन चीज़ों पे फ़र्ज होती है, और तीसरे नंबर पे निसाब क्या है। हम कहते हैं कि साहिब निसाब पर ज़कात फ़र्ज। अब ये निसाब जो है ये क्या चीज़ है, क्या बला है, निसाब की कितनी किस्में हैं। इसी तरह कौन सी चीज़ें काबिल ज़कात अमवाल में से मनफी की जाएंगी, और ज़कात का हिसाब लगाने की तारीख क्या है, ज़कात का मुस्तहिक कौन है, कर्ज और शेयर्स पे ज़कात के अहकाम क्या है, कारोबार की जदीद सूरतों पे ज़कात के अहकाम क्या है, सर्विसेज का कारोबार कर रही हैं तो उसकी ज़कात कैसे निकालनी है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कर रहे हैं, कोई फैक्ट्री वगैरह है, आप प्रोडक्ट्स वगैरह तैयार कर रहे हैं तो उसकी ज़कात आपने कैसे निकालनी है, या आपकी कोई छोटी सी शॉप है उसकी आपने ज़कात कैसे निकालनी है।
प्रॉपर्टी वगैरह का काम करते हैं तो उसकी आप ज़कात कैसे निकालेंगे? तो इंशाअल्लाह अल्लाह की फजल करम से इन 2 दिनों में हम कोशिश करेंगे इन सारे मसाइल को बड़े अच्छे और आमफहम अंदाज से हम आपके सामने बयान करें। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारे लिए इनको बयान करना आसान बना दे और हमें इन बातों पे अमल की तौफीक नसीब फरमा दे। तो सबसे पहला सवाल कि ज़कात किस शख्स पे फर्ज है? सबसे पहला सवाल क्या है कि ज़कात किस शख्स पे फर्ज है? तो इसके लिए कुछ शराइत है। नंबर एक, मुसलमान हो। तो इससे मालूम हुआ कि काफिर पर ज़कात नहीं है। नंबर दो, बालिग हो। तो इससे मालूम हुआ कि अगर कोई नाबालिग बच्चा या बच्ची है तो उसके माल पर ज़कात नहीं है। नाबालिग बच्चे या बच्ची के माल पर ज़कात नहीं है। यहाँ पे एक और मसला भी समझ लें। यहाँ पे एक और मसला भी समझ लें। वो मसला ये है कि अक्सर वालिदैन अपने बच्चों या बच्चियों के लिए बचपन ही में जेवर खरीद लेते हैं, सोना खरीद लेते हैं, और उनकी नीयत ये होती है कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब शादी की उम्र को पहुंच जाएंगे, इनकी शादी करनी होगी, तो ये जेवर उन्हें दे देंगे। तो याद रखिए, ऐसे जेवर पे जक़ात जो है वो लाजिम होगी। और बाप ने अगर खरीदा अपने पैसों से तो उस पर जक़ात लाजिम होगी। अगर वालिदा ने खरीदा है तो वालिदा पे जक़ात लाजिम होगी। जब तक आप नाबालिग बच्चे या बच्चे को मालिक बनाकर नहीं देते, उस वक्त तक उस माल पे जक़ात लाजिम होगी। सिर्फ दिल में नियत करना, इरादा करना कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे ये मैं अपने बच्चे को दे दूंगी या दे दूंगा, तो ये इरादा करने से, नियत करने से आपकी मिल्कियत खत्म नहीं होती। बल्कि अगर बच्चा या बच्ची नाबालिग है तो बच्चे या बच्ची के वालिद को दे देने से, बाकायदा मालिक बना के दे दिए जाए कि ये फलाने बेटे का है, ये फलानी बेटी का है, आप इस पर कब्जा कर ले। जब वो अपने बच्चे के लिए कब्जा कर लेगा, क्योंकि वो उसका वली है, तो आपकी मिल्कियत से ये खारिज हो जाएंगे। और नाबालिग बच्चे या बच्ची के माल पे जक़ात फिर होता ही नहीं है, जक़ात होती ही नहीं है उसके माल पे। तो बहरहाल मुसलमान पे जक़ात होती है, बालिग पे होती है। इसी तरह तीसरी शर्त है कि आकिल हो। मजनून और पागल के माल पे जक़ात नहीं होती। चौथी शर्त यह है कि साहिब निसाब हो, यानी उसकी मिल्कियत में निसाब भी मौजूद हो। एक शख्स मुसलमान है, बालिग है, आकिल है, साहिब निसाब है, तब उसके ऊपर जक़ात होगी। लेकिन आगे भी एक शर्त है, सिर्फ साहिब निसाब होना काफी नहीं है। साहिब निसाब के बारे में तफसील आगे पढ़ेंगे। साहिब निसाब जब हो जाए, निसाब का जब वो मालिक हो जाए, उस निसाब पर साल भी पूरा हो चुका हो, उस निसाब पे साल भी पूरा हो चुका हो। अब भी रुकिए, मजीद आगे भी, कि सिर्फ साल पूरा होना काफी नहीं है, बल्कि वो माली वाजिबात से जायद भी हो। तो खुलासा ये हुआ कि हर मुसलमान बालिग आकिल साहिब निसाब पर, जिसके निसाब पर साल पूरा हो चुका हो और माली वाजिबात से जायद हो, उस पर जक़ात लाजिम होती है। यहाँ पे साल पूरा हो चुका हो, इसकी वजाहत वैसे आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ पे भी एक बात समझ लें कि हर हर चीज पर साल का पूरा होना जरूरी नहीं है, हर हर रुपए पर, बल्कि साल के पहले दिन और आखिरी दिन निसाब का हो पूरा होना जरूरी है। साल के दरमियान के ऊंच नीच का एतबार नहीं है। मतलब यकम रमजान को आप साहिब निसाब बन गए, आपके पास 1,80,000 रुपया आ गया, ठीक है। अब ये आपका साल का पहला दिन है। अब अगले साल उसी तारीख को आपने देखना है कि 1,80,000 रुपये आपके पास मौजूद है या नहीं। अगर उससे ज्यादा है तो उसकी आप जक़ात अदा करेंगे, उससे कम है आप जक़ात अदा नहीं करेंगे। साल के दरमियान में रकम कम ज्यादा होती है, कभी 1,50,000 हो गया, कभी 1,20,000 हो गया, कभी 80,000 हो गया, कभी 50,000 हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि इस साल के पहले और आखिरी दिन में आपने देखना है, अगर आपके पास निसाब पूरा है तो आप साहिब निसाब है, जक़ात अदा करेंगे।
माली वाजिबात से जायद हो, इसमें कर्ज भी शामिल है, यूटिलिटी बिल्स वगैरह, उनको मनफी करके जो बाकी बच जाए वो निसाब के बराबर हो। तो एक मरतबा फिर मैं अर्ज करने लगा हूँ, बताने लगा हूँ कि ज़कात किस शख्स पे फर्ज है। हर मुसलमान बालिग आकिल पर, जो कि साहिब निसाब हो और निसाब पर सार भी पूरा हो चुका हो, और वो निसाब माली वाजिबात से जायद हो, तो उस पर ज़कात फर्ज होती है। पहली बात समझ आ गई सबको कि ज़कात किस शख्स पे फर्ज है। ज़कात किस शख्स पे फर्ज है, उम्मीद करता हूं सबको समझ आ गई होगी। अगर किसी के जहन में कोई सवाल है, कोई बात समझ में नहीं आती, तो आप सवाल जो है अपने पास नोट करते जाएं। इंशाअल्लाह सेशन के आखिर में आपके एक एक सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो पहला सवाल जो है हमने क्लियर कर दिया कि ज़कात किस शख्स पे फर्ज है। अब दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। अब दूसरे सवाल की तरफ कि ज़कात किन किन चीजों पे फर्ज होती है। पहले सवाल तो हमें समझ में आ गया कि ज़कात किस शख्स पे फर्ज है। अब ज़कात किन किन चीजों पे फर्ज होती है। हमारे पास तो दुनिया जहां की चीजें होती है। अब क्या हर एक चीज पे ज़कात लाजिम होगी, या शरीयत ने इसके लिए कुछ अलग से कवानीन बताए हैं, कुछ अमवाल को खास किया है। तो नॉर्मली जो शहर में अफराद रहते हैं, चार चीजें हैं जिनको काबिल ज़कात अमवाल कहा जाता है। जिनको क्या कहा जाता है? काबिल ज़कात अमवाल या ज़कातेबल एसिड्स। ज़कातेबल एसिड्स कह लें या काबिल ज़कात अमवाल कह लें, ये चार है। ये जो लोग खेती वगैरह करते हैं उन पे उशर लाजिम होता है, वो अलग बहस है, उसको हम यहाँ पे जिक्र नहीं कर रहे हैं। इसी तरह जो गांव देहात में रहते हैं, जो जानवर वगैरह रखते हैं, उनके लिए अलग से निसाब है, उनका जिक्र हम नहीं कर रहे हैं। इनके अलावा जो शहर में रहते हैं, तो काबिल ज़कात अमवाल जो है वो चार है। ज़कातेबल एसिड्स कितने हैं? चार है। नंबर एक सोना, नंबर दो चांदी, नंबर तीन नकदी, नंबर चार माली तिजारत। यानी अगर किसी शख्स के पास सोना मौजूद है, चांदी मौजूद है, नकदी मौजूद है, माली तिजारत मौजूद है, तो वो जक़ात अदा करेगा। सोने की जक़ात अदा करनी होती है, चांदी की जक़ात अदा करनी होती है, नकदी की जक़ात अदा करनी होती है, माली तिजारत की जक़ात अदा करनी होती है। इसके अलावा दुनिया जहां की जो बाकी चीजें हैं उन पे जक़ात नहीं होती। ये चार चीजें हैं जिन पर जक़ात लाजिम है। ये चार चीजें हैं जिन पर जक़ात लाजिम है। इनको जक़ातेबल एसेट्स भी कहते हैं, काबिल जक़ात अमवाल भी कहते हैं। हर एक की तफसील है वो आपके सामने बयान करूंगा। सोना जो है ये भी जक़ातेबल एसेट्स में शुमार होता है। ठीक है। अब ये किसी भी शक्ल में हो। पहली चीज क्या? सोना जो है, सोना जो है ये किसी भी शक्ल में हो और किसी भी मकसद के लिए हो, किसी भी शक्ल में हो और किसी भी मकसद के लिए हो, इस पर जक़ात लाजिम होगी। किसी भी शक्ल से मुराद क्या? ईंट की शक्ल में है, जेवर की शक्ल में है, बर्तन की शक्ल में है, चाहे इस्तेमाल में है या नहीं है, जक़ात लाजिम होगी। किसी भी मकसद के लिए हो, क्या मतलब? चाहे दीनी मकसद है, यानी हज के लिए आपने सोना रखा हुआ है, या दुनियावी मकसद है जैसे शादी करने के लिए, मकान बनाने के लिए आपने सोना रखा हुआ है, तो ये काबिल ज़कात अमवाल में काउंट होगा और इसकी आपने ज़कात देनी है। तो सोने की हर हालत में आपने ज़कात देनी है, किसी भी शक्ल में हो, किसी भी मकसद के लिए हो। चांदी भी इसी तरह है कि किसी भी शक्ल में हो और किसी भी मकसद के लिए हो। तरह ईंट की शक्ल में है, जेवर की शक्ल में है, बर्तन की शक्ल में है, इस्तेमाल में आता है या नहीं आता, किसी भी मकसद के लिए है, चाहे दीनी मकसद है जैसे हज, या दुनियावी मकसद है जैसे शादी और मकान वगैरह तामीर करने के लिए आपने चांदी रखा है, तो आपके ऊपर जक़ात लाजिम होगी।
सोना किसी भी शक्ल में हो और किसी भी मकसद के लिए हो, इसी तरह चांदी भी किसी भी शक्ल में हो और किसी भी मकसद के लिए हो, तो इस पर जक़ात लाजिम होती है। इस पर क्या होती है? जक़ात लाजिम होती है। नकदी जो है, जिसके साथ हमें अक्सर वास्ता पड़ता है, किसी भी शक्ल में हो, नकदी क्या है? किसी भी शक्ल में हो और किसी भी मकसद के लिए हो। नकद रकम जो है, चाहे आपके पास पाकिस्तानी रुपए है, अमेरिकन डॉलर है, या पाउंड है, या रियाल है, या दिरहम है, कोई भी करेंसी है आपके पास, वो नकदी कैटेगरी में शामिल है। वो किसी भी शक्ल में है और किसी भी मकसद के लिए हो, इस पर जक़ात लाजिम होगी। ये नकदी की मुख्तलिफ सूरतें होती है। नकदी की क्या होती है? मुख्तलिफ सूरतें होती है। नंबर एक, बैंक में हो, आपके पास हाथ में नहीं है, बैंक में है, या आपके पास हाथ में है, किसी के पास आपने नकद रकम अमानत रखवाई है, या आपने सर्टिफिकेट खरीदे हुए हैं, या बॉन्ड्स जो है उसकी शक्ल में मौजूद है। अगरचे सर्टिफिकेट या बॉन्ड्स खरीदना शरअन जायज नहीं है, ठीक है, प्राइस बॉन्ड खरीदना या सर्टिफिकेट, सेविंग सर्टिफिकेट वगैरह जो है, ये खरीदना जायज नहीं है। लेकिन बहरहाल अगर किसी ने ये गुनाह किया हुआ, उसके पास सर्टिफिकेट्स या बॉन्ड्स की शक्ल में पैसे मौजूद है, तो उस पर भी जक़ात लाजिम होती है। कमेटी में आपने रकम जमा करवाई है, कमेटी में आपने क्या की है? रकम जमा करवाई है, हज या शादी के लिए जमा की है, आपने पैसे जमा किए हुए हैं हज पे जाने के लिए या शादी करने के लिए। इसी तरह गैर मुल्की करेंसी की सूरत में हो, आपने रियाल रखे हुए हैं, डॉलर रखे हुए हैं, वाजिबुल वसूल कर्जे, रिसीवेबल लोन्स, यानी आपने माल बेचा है, उधार आपने माल बेचा है, ठीक है, या इसी तरह आपने किसी को कर्ज दिया है और मिलने की उम्मीद भी है, मिलने की उम्मीद भी है। इसी तरह आपने इंश्योरेंस पॉलिसी में जमा शुदा रकम जो है, इंश्योरेंस पॉलिसी में जो प्रीमियम आपने जमा करवाया हुआ है, अगरचे इंश्योरेंस पॉलिसी लेना ये शरअन जायज नहीं है, नाजायज है, हराम है, लेकिन अगर किसी ने ये गुनाह किया हुआ है, अल्लाह ताला हिफाजत में रखे, तो जो प्रीमियम आपने जमा करवाया हुआ है वो आपकी नकदी है। तो ये मैंने नकदी की मुख्तलिफ सूरतें आपको बता दी कि किन किन सूरतों में हमारे पास नकदी हो सकती है। इसके अलावा भी मुख्तलिफ चीजें हैं, ठीक है। तो नकदी किसी भी शक्ल में हो और किसी भी मकसद के लिए हो, उस पर जक़ात लाजिम होगी। नकदी किसी भी शक्ल में हो और किसी भी मकसद के लिए हो, उस पर जक़ात लाजिम होगी, ठीक है। तो जकातेबल एसिड्स जो है वो चार थे: सोना, चांदी, नकदी। ये तीनों जो है किसी भी शक्ल में हो और किसी भी मकसद के लिए हो, इन पर जक़ात लाजिम होती है। अब चौथे नंबर पे जो चीज है, माल तिजारत। माल तिजारत को हमने समझना है, ये बहुत अहम है। इसमें दुनिया की हर चीज शामिल भी हो सकती है। माली तिजारत में दुनिया की हर चीज शामिल हो सकती है। माली तिजारत किसे कहते हैं? माली तिजारत किसे कहते हैं? जिसमें तीन शराइत पाई जाए। माली तिजारत जिसमें तीन शराइत पाई जाए। नंबर एक, आप कोई चीज खरीद लें। पहली शर्त क्या है? कि आप कोई चीज खरीद लें। अगर आपको कोई कोई चीज गिफ्ट में मिलती है, विरासत में मिलती है, आपको गाड़ी गिफ्ट में मिली है, विरासत में मिली है, मकान गिफ्ट में मिला है, विरासत में मिला है, तो ये माली तिजारत की कैटेगरी में फॉल नहीं कर सकता। तो पहली शर्त क्या है? कि आपने वो चीज खरीदी हो। दूसरी शर्त ये कि आगे बेचने की नीयत से खरीदी हो। वो चीज आपने आगे बेचने की नीयत से खरीदी हो। मसलन आपने गाड़ी खरीद ली आगे बेचने के लिए, तो ये माल तिजारत की कैटेगरी में आएगा। लेकिन अगर आपने अपने इस्तेमाल के लिए गाड़ी खरीदी है, अपने इस्तेमाल के लिए प्लॉट खरीदा है, अपने इस्तेमाल के लिए मकान खरीदा है, तो वो माली तिजारत में नहीं आएगा। तीसरी शर्त क्या है? कि ज़कात वाले दिन तक बेचने की नीयत बरकरार हो।
अगर एक चीज आपने बेचने की नीयत से खरीदी थी, लेकिन जक़ात वाले दिन से पहले पहले आपकी नीयत तब्दील हो गई, आप सोचने लगे कि ये गाड़ी तो बहुत अच्छी है, मैं अपने लिए रख लेता हूँ, ये फोन जो है ये तो बहुत अच्छा है, अपने लिए रख लेता हूँ, ये लैपटॉप जो है बहुत अच्छा है, ये मैं अपने लिए रख लेता हूँ, इसको मैं अपने लिए रख लेता हूँ, तो फिर ऐसी सूरत में वो माली तिजारत नहीं है। तो माली तिजारत में तीन शराइत पाई गई। एक ये कि चीज आपने खरीदी हो, नंबर दो बेचने की नीयत से खरीदी हो, नंबर तीन अभी तक जक़ात वाले दिन तक बेचने की नीयत बरकरार हो, तो वो माली तिजारत है। माली तिजारत कोई भी चीज जिसको आगे बेचने की गरज से खरीदा हो और जक़ात वाले दिन तक बेचने की नीयत बरकरार हो। अभी यहाँ पे आमतौर पर एक गलत फहमी पाई जाती है। मसलन एक आदमी है, उसका कारोबार जो है वो गाड़ियों का है, वो गाड़ियां खरीदता है बेचता है, गाड़ियां खरीदता है बेचता है, उसका कारोबार ये है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कभी वो कोई मोबाइल खरीद ले बेचने की नीयत से, तो ये मोबाइल जो है ये भी माली तिजारत बन जाएगा। कोई लैपटॉप वो खरीद ले बेचने की नीयत से, तो ये लैपटॉप भी माली तिजारत होगा। एक तो वो एक कारोबार कर रहा है, वो तो है ही इसका, लेकिन जो भी चीज बेचने की नीयत से ये खरीदेगा वो भी माली तिजारत है। तो ये आम गलत फहमी है कि माली तिजारत सिर्फ ताजिर के पास मौजूद फरोख्त के लिए रखी जाने वाली चीज को कहते हैं। अगर किसी शख्स की मसलन मोबाइल खरीदते वक्त आगे फरोख्त करने की नीयत थी, चाहे उसका कारोबार ये ना भी हो, तब भी ये मोबाइल माली तिजारत में शुमार होगा। तो माली तिजारत की तारीफ समझ में आ गई। अब ये कुछ मसाइल इस हवाले से हम देख लेते हैं। एक आदमी ने प्लॉट खरीदा, एक आदमी ने क्या किया, प्लॉट खरीदा, और खरीदने के वक्त से लेके जक़ात के हिसाब वाले दिन तक यही नीयत है कि इसको आगे फरोख्त करना है। एक आदमी ने प्लॉट खरीदा, खरीदते वक्त ये नीयत थी कि इसको आगे बेचना है, और अभी तक उसकी नीयत यही है, तो ये माली तिजारत है। ये क्या है, माली तिजारत है। अगर कोई भी चीज अगर कोई भी चीज इस्तेमाल की गरज से खरीदी और बाद में तिजारत की नीयत हो गई, तो सिर्फ बेचने की नीयत करने से वो माली तिजारत में शुमार नहीं होगी। सिर्फ बेचने की नीयत करने से वो माली तिजारत में शुमार नहीं होगी। अगर कोई भी चीज आपने इस्तेमाल की गरज से खरीद ली, बाद में आपने कहा कि भाई मैं मेरे पास दूसरी चीज भी, इसको मैं बेच लेता हूं, बाद में आपकी तिजारत की नीयत हो गई, तो अब ये सिर्फ बेचने की नीयत करने से वो माली तिजारत में शुमार नहीं होगी। ठीक है। हाँ, जब आपने उस चीज को बेच दिया, नकद रकम आपके पास आ जाएगी, तो उसकी आपने जक़ात देनी होगी, उसकी आपने क्या करनी होगी, जक़ात देनी होगी। नंबर तीन, अगर कोई चीज आगे फरोख्त करने की गरज से खरीद ली और बाद में नीयत तब्दील हो गई, और बाद में नीयत तब्दील हो गई और उस चीज को इस्तेमाल करने का बना लिया, और उस चीज को इस्तेमाल करने का बना लिया, तो वो माली तिजारत में शुमार नहीं होगी। अगर कोई चीज आगे फरोख्त करने की गरज से खरीदी और बाद में नीयत तब्दील हो गई और उस चीज को इस्तेमाल करने का बना लिया, तो वो माली तिजारत में शुमार नहीं होगी। ठीक है। तो ये माली तिजारत के हवाले से अहम जो बातें थी वो आपको बता दी। तो खुलासा ये हुआ कि काबिल ज़कात अमवाल जो है वो चार हैं। काबिल ज़कात अमवाल कितने हैं, चार है। सोना, चांदी, नकद रकम, चाहे किसी भी शक्ल में हो और किसी भी मकसद के लिए हो, इन पर ज़कात लाजिम होती है। और चौथी चीज जो है माली तिजारत। माली तिजारत से मुराद किया कि एक चीज आपने खरीदी है, बेचने की नीयत से खरीदी हो और अभी तक बेचने की नीयत बरकरार हो, तो वो माली तिजारत है। इनमें से कोई एक शर्त भी ना पाई जाए तो वो माली तिजारत में काउंट नहीं होगी,
ये मसाइल आपको बता दिए इसके। ठीक है, तो ये दो सवाल हमारे हो गए। पहला सवाल हमारा क्या था कि ज़कात किस शख्स पर फर्ज है। हर मुसलमान आकिल बालिग पर खुद साहिब निसाब हो और उसके निसाब पे सार पूरा गुजर चुका हो और वो माली वाजिबात से जायद हो तो उस पर ज़कात फर्ज है। अब ज़कातेबल एसेट्स जो है वो चार है: सोना, चांदी, नकद रकम और माल तिजारत। अब तीसरे नंबर पे जो चीज आ रही है निसाब। अब ये निसाब क्या चीज है? ये बार बार हम कह रहे हैं कि साहिब निसाब हो, साहिब निसाब हो, साहिब निसाब हो। तो निसाब किसे कहते हैं? वो मखसूस मिकदार जिसका मालिक होने पर जक़ात फर्ज हो जाती है। वो मखसूस मिकदार जिसका मालिक होने पर जक़ात फर्ज हो जाती है। वो मखसूस मिकदार जिसका मालिक होने पे जक़ात क्या हो जाती है? फर्ज हो जाती है। अब हमारे पास दो किस्म की निसाब है। हमारे पास दो किस्म की निसाब है। एक निसाब वो है जिसके जरिए जक़ात के लाजिम होने या ना होने का फैसला किया जाता है। एक निसाब वो है जिसके जरिए हमने ये फैसला करना है कि मेरे ऊपर जक़ात फर्ज है या नहीं है, मेरे ऊपर जक़ात लाजिम है या नहीं। एक तो इसका निसाब होता है। और दूसरा निसाब वो है जिसके जरिए जक़ात लेने के लिए मुस्तहिक होने या ना होने का फैसला किया जाता है। तो हमारे पास कितने निसाब हो गए? दो निसाब हो गए। एक के जरिए हम फैसला करते हैं कि मेरे ऊपर जक़ात फर्ज है या नहीं, और दूसरा निसाब वो है जिसके जरिए हम फैसला करते हैं कि आया फलाना बंदा या मैं जक़ात लेने का मुस्तहिक हूं या नहीं, जक़ात लेने का मुस्तहिक हूं या नहीं। तो दोनों की तफसील आपके सामने मैं रखूंगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम वो निसाब देखेंगे जिसके जरिए से हमने फैसला करना है कि मेरे ऊपर जक़ात फर्ज है या नहीं। इसको कहते हैं निसाब बराए वजूब जक़ात। निसाब बराए वजूब जक़ात। निसाब बराए वजूब जक़ात। जक़ात के वाजिब होने के लिए निसाब। जक़ात के वाजिब होने के लिए निसाब। तो अभी आपको मैंने बताया कि जकातेबल एसेट्स कितने हैं? चार है। नंबर एक सोना, नंबर दो चांदी, नंबर चार, नंबर तीन नकदी, नंबर चार माल तिजारत। नंबर चार क्या है? माल तिजारत। अब इसको हमने समझना है, ठीक है। अगर एक आदमी के पास, एक सूरत ये है, मुख्तलिफ सूरतें इसकी, ठीक है। नंबर एक, अगर एक आदमी के पास सिर्फ सोना है, देखिए इसी को हाईलाइट किया। अगर एक आदमी के पास क्या है? सिर्फ सोना है, तो क्या निसाब होगा? ये आपके सामने लिखा हुआ 7.5 तोला हो। अगर एक आदमी के पास सिर्फ सोना है, बाकी तीन चीजों में से कुछ भी नहीं है, चांदी भी नहीं है, नकदी भी नहीं है, माल तिजारत भी नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में सोने के निसाब का एतबार होता है। और सोने का निसाब जो है 7.5 तोला है। ग्राम के एतबार से अगर हम देखें, 87.47 ग्राम। 87.47 ग्राम। अगर एक आदमी के पास सिर्फ सोना है, चांदी नकदी माली तिजारत नहीं है, तो उसकी मिकदार अगर 7.5 तोला हो या 87.47 ग्राम हो, तो वो शख्स साहिब निसाब होगा। साल गुजरने के बाद उस पर जक़ात लाजिम होगी। इसी तरह नंबर दो देखें। नंबर दो, अगर किसी के पास सिर्फ चांदी हो, किसी के पास क्या हो? सिर्फ चांदी हो, सोना भी नहीं है बल्कि सिर्फ चांदी है, नकदी भी नहीं है, माली तिजारत भी नहीं है, तो ऐसी सूरत में चांदी के निसाब को देखा जाता है। ऐसी सूरत में किसके निसाब को देखा जाता है? चांदी के निसाब को। चांदी का निसाब क्या है? 52.5 तोला। 52.5 तोला। ग्राम में अगर हम देखेंगे, 612.35 ग्राम। 612.35 ग्राम। तो दूसरी सूरत क्या हो गई कि अगर सिर्फ चांदी है, सोना भी नहीं है, नकदी भी नहीं है, माली तिजारत नहीं है,
तो अब चांदी को देखा जाता है, चांदी के निसाब को देखा जाता है, और चांदी का निसाब क्या है? 52.5 तोला, और ग्राम में 612.35 ग्राम। ठीक है। सिर्फ सोना हो तो सोने का निसाब देखा जाता है, सिर्फ चांदी हो तो चांदी का निसाब देखा जाता है। दोनों निसाब मैंने आपको बता दी है। नंबर 3 देखें, तीसरी सूरत क्या? कोई से दो अमवाल ज़कात हो, यानी कोई से दो ज़कातेबल एसिड्स हो। मसलन सोना भी है, चांदी भी है, नकदी नहीं है, माली तिजारत भी नहीं है। तो इस सूरत में भी चांदी के निसाब को देखेंगे। इस सूरत में भी किसके निसाब को देखेंगे? चांदी का निसाब। यानी अगर 52.5 तोला चांदी की मालियत के बकदर ये सोना और चांदी होंगे तो फिर जक़ात लाजिम होगी। चौथी सूरत देख लें, कोई से तीन अमवाल ज़कात हो। मसलन सोना नहीं है, चांदी है, नकदी है, या माली तिजारत है, या माली तिजारत है, तो ये चौथी सूरत में भी किसका एतबार किया जाता है? चांदी की मालियत का एतबार किया जाता है, चांदी के निसाब को देखा जाता है कि अगर ये तीनों चीजें 52.5 तोला चांदी की मालियत की बकदर होगी तो जक़ात लाजिम होगी। या पांचवी सूरत देख लें, या चार अमवाल ज़कात हो। क्या हो? चार अमवाल ज़कात हो, यानी सोना भी है, चांदी भी है, नकद रकम भी है, और माली तिजारत भी है। तो अब भी किसका एतबार किया जाता है? चांदी की मालियत का एतबार किया जाता है। अगर इसकी मालियत 52.5 तोला चांदी की मालियत के बकदर होगी तो वो शख्स साहिब निसाब कहलाएगा, उस पर जक़ात लाजिम होगी। तो यहां पे हमारे पास दो निसाब आ गए, एक सोने का और एक चांदी का। सोने का निसाब जो है सिर्फ एक सूरत में देखा जाता है, और वो कब है? जब किसी शख्स या खातून के पास सिर्फ सोना हो और उसकी मिकदार 7.5 तोला हो या 87.47 ग्राम हो, तो वो शख्स या खातून साहिब निसाब होगी। लेकिन अगर किसी के पास सिर्फ चांदी है, या कोई से दो अमवाल है, सोना और चांदी है, या कोई से तीन अमवाल ज़कात है, मसलन सोना, चांदी, नकदी, माली तिजारत है, या कोई चार से अमवाल ज़कात है, सोना, चांदी, नकदी, माली तिजारत, ऐसी सूरत में चांदी के निसाब को देखा जाता है। यहाँ पे एक और बात भी याद रखें, अगर किसी के पास सिर्फ नकद रकम है या सिर्फ माली तिजारत है, तब भी चांदी के निसाब को देखा जाता है। यानी अगर 52.5 तोला चांदी की मालियत के बकदर नकद रकम होगी या माली तिजारत होगी, तो वो साहिब निसाब है, उस पर जक़ात लाजिम होगी। उस पर क्या होगी? जक़ात लाजिम होगी। दोबारा मैं अर्ज करने लगा हूं मुख्तसरन कि तीसरा सवाल हमारा ये था कि निसाब क्या चीज है। तो वो मखसूस मिकदार जिसके मालिक होने पर इंसान पर जक़ात लाजिम होती है। अब निसाब की दो किस्में हैं, एक निसाब तो वो है जिसके जरिए हमने फैसला करना है कि जक़ात मेरे ऊपर लाजिम है या नहीं, और एक निसाब वो है के जरिए से मैंने फैसला करना है कि मैं जक़ात का मुस्तहिक हूं या नहीं। तो पहले निसाब को निसाब बराए वजूब ज़कात कहते हैं, और उसमें फिर ये अगर किसी के पास सिर्फ सोना है तो सोने का निसाब देखा जाता है, और अगर किसी के पास सिर्फ चांदी है, या सिर्फ नकद रकम है, या सिर्फ माली तिजारत है, या कोई इससे दो अमवाल ज़कात है, या कोई से तीन अमवाल ज़कात है, या कोई से चार अमवाल ज़कात है, तो चांदी के निसाब को देखा जाता है। इसके निसाब को देखा जाता है, चांदी के निसाब को देखा जाता है। तो तीन सवाल जो है हमारे मुकम्मल हो गए। पहला सवाल कि ज़कात किस शख्स पे फर्ज है, ज़कात किस शख्स पे फर्ज है। हमारा दूसरा सवाल कि ज़कात जो है किन अमवाल पे फर्ज है। और तीसरा सवाल कि निसाब क्या चीज है, ये आपको बता दी। फिर में हमने पढ़ा था कि माली वाजिबात से जायद हो तो निसाब से मनफी की जाने वाली जिम्मेदारियां, लाइबिलिटीज जिन्हें कहा जाता है, जो हमारे पास निसाब है, उन उस निसाब से कुछ चीजों को हमने माइनस करना होता है, मनफी करना होता है। कुछ चीजों को हमने क्या करना होता है? माइनस करना होता है, मनफी करना होता है। तो नंबर एक, वाजिबुल अदा कर्ज। आपके ऊपर कोई कर्ज लाजिम है, आपने किसी का कर्ज देना है,
तो इस कर्ज को भी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है। वैसे कर्ज के बारे में तफसील से भी हम गुफ्तगू करेंगे। कर्जों की मुख्तलिफ किस्में हैं, तिजारती कर्जे हैं, नॉर्मल कर्जे हैं, उसकी तफसील आगे इंशाल्लाह बयान करेंगे। अब यहाँ पे सिर्फ आप ये याद रखें कि आपके ऊपर वाजिब अदा कर्ज है, ये मामूली जो कर्जे होते हैं, 10,000 ले लिए, 20,000, 25,000 आपने कर्जा ले लिया, आपके ऊपर वाजिब अदा कर्ज है, इसको अपने हिसाब से माइनस करना है। नंबर दो, कमेटी की बकिया किस्तें, यानी अगर कमेटी आपको मिल चुकी है, कमेटी आपको मिल चुकी है, तो बकिया किस्तें आपके ऊपर चूंकि कर्ज है, उसको भी आप माइनस करेंगे। नंबर तीन, यूटिलिटी बिल्स, फोन का बिल है, बिजली का बिल है, या कोई और बिल है, तो एक महीने के जो यूटिलिटी बिल्स है वो भी आप माइनस कर सकते हैं। इसी तरह किस्तों पर खरीदी हुई चीजों की बकिया एक साल की किस्तें, बकिया एक साल की किस्तें, ये किस्तों के हवाले से भी तफसील से हम आगे गुफ्तगू करेंगे। नंबर पांच, मुलाजिमीन की वाजिब उल अदा तनख्वाहें, यानी मुलाजिमीन की जो तनख्वाहें आपके ऊपर ड्यू हो चुकी है, लाजिम हो चुकी है, उनको भी आप ज़कातेबल एसेट्स से, निसाब से माइनस कर सकते हैं। मकान का, दुकान का वाजिब उल अदा किराया, यानी एक महीने का जो किराया आपके ऊपर ड्यू हो चुका है, वाजिब हो चुका है, उसको भी आप माइनस कर सकते हैं। इसी तरह वाजिब उल अदा टैक्स जो है, आपके आपका जो टैक्स बना है आपके ऊपर ड्यू है, उस टैक्स को भी आप माइनस कर सकते हैं। गुज़श्ता सालों की ज़कात अगर अभी तक अदा न की हो तो उनको भी माइनस कर सकता है। नंबर नौ, बीवी का महर अगर अदा न किया हो और अदा करने की नीयत हो, अदा करने की नीयत हो, तो उसको भी निसाब से क्या किया जा सकता है, माइनस किया जा सकता है। उसको भी निसाब से क्या किया जा सकता है, माइनस किया जा सकता है। यहां तक बात समझ आ गई सबको? जी, बस ये थोड़ा सा रह गया, फिर बाकी बातें कल कर लेंगे। अब ये पांचवें नंबर पे जक़ात का हिसाब लगाने की तारीख, जक़ात का हिसाब लगाने की तारीख। ठीक है। तो जिस दिन कोई शख्स साहिब निसाब बने, जिस दिन कोई शख्स साहिब निसाब बने, उससे एक मुकम्मल इस्लामी साल गुजरने के बाद उसी दिन अगर साहिब निसाब हो, तो ये तारीख उसकी जक़ात का हिसाब लगाने की तारीख है, वैल्यूएशन डेट जिसे कहते हैं। यकम रमजान को एक शख्स साहिब निसाब बना, अगले साल यकम रमजान को ही वो जक़ात का हिसाब लगाएगा। और यहाँ पे याद रखें, जक़ात की तारीख का एतबार कमरी साल से होगा। ठीक है। अगर किसी को अपने साहिब निसाब होने की कमरी तारीख याद ना हो, तो गौर और फिक्र करके कोई कमरी तारीख मुकम्मल कर ले, यानी इस्लामी तारीख जो है, और आइंदा उसके मुताबिक हिसाब किताब करता रहे। अलबत्ता हिसाब करने और इंतजामी सहूलत से अदायगी शमसी तारीख में भी करना जायज़ है, लेकिन ज़कात का हिसाब कमरी तारीख से ही बनेगा। अगर आप शमसी तारीख से करना चाहते हैं तो 2.5% की बजाय 2.5 की बजाय 2.6 दे दिया करें। 2 पॉइंट कितना दे दिया करें, 6 दे दिया करें। असल में मसला क्या है, हम कहते हैं कि भाई शमसी तारीख के एतबार से ना हो, कमरी तारीख इस्लामी तारीख के एतबार से हो, तो वो तकरीबन 10 दिनों का फर्क आता है। दोनों में क्या आता है, 10 दिनों का फर्क आता है। तो तकरीबन 30 सालों बाद क्या होगा, एक साल का इजाफा हो जाएगा। एक साल का क्या होगा, इजाफा हो जाएगा शमसी तारीख से अगर आप देंगे, और उसकी आपने फिर अलग से जक़ात अदा करनी होगी। इसलिए 2.6 करके आप अदा करते रहेंगे, तो जो फर्क दरमियान में आता है वो खुद ब खुद खत्म होता जाएगा। तो बहरहाल ज़कात का हिसाब लगाने की तारीख आपको मालूम होनी चाहिए। अगर आपको मालूम नहीं है तो अभी आप मालूम कर ले, फिर आइंदा उसी साल के हिसाब से ज़कात अदा करते रहें, ज़कात का हिसाब लगाते रहें। ज़कात तो किसी वक्त भी अदा कर सकते हैं, हिसाब जो है उस दिन आपने लगानी है। शुरू में एक बात मैंने आपको बताई थी कि निसाब पूरा होने के बाद हर रुपए और काबिल ज़कात अमाल पर साल गुजरना लाजिम नहीं है।
दरमियान में होने वाली कमी बेशी का एतबार नहीं किया जाएगा। साल मुकम्मल होने पर निसाब बाकी हो तो जक़ात की अदायगी लाजिम होगी, वरना नहीं। मिसाल देके 10 शाबान को आपके पास 3 लाख रुपए आ गया। 10 शाबान को आपके पास क्या आ गया? 3 लाख रुपए आ गया। यकम रमजान में, रमजान के महीने में 1 लाख आ गया। 4 लाख हो गए। शवाल के महीने में एक और लाख आ गया। 5 लाख हो गए। जिलकादा के महीने में एक और लाख आ गए, 6 लाख। जिलहज्जा के महीने में 1 लाख आ गया, 7 लाख। रबी उल अव्वल के महीने में क्या हो गया? 1 लाख आ गया। 9 लाख या 8 लाख हो गए। 1 2 3 4 5 8 लाख हो गए। रजब का जब महीना आ गया तो 4 लाख आपके खर्च हो गए। रजब के महीने में क्या हो गए? 4 लाख खर्च हो गए। तो 10 शाबान जब वापस आ गया तो आपके पास 4 लाख रकम थी। 10 शाबान को आपके पास, पिछले साल 10 शाबान को 3 लाख थी। साल के दरमियान में इजाफा हो रहा था, हो रहा था, हो रहा था, रजब तक। रजब के महीने में जो है वो कमी आ गई 4 लाख तक। 10 शाबान को देखा तो 4 लाख आपके पास मौजूद है। तो अब ये 4 लाख की आपने जक़ात अदा करनी है। 4 लाख की आपने क्या करनी है? जक़ात अदा करनी है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि 10 शाबान से एक दिन पहले कुछ रकम आ जाए, 10 लाख रुपए और आ जाए। अब ये 10 लाख रुपए पे अभी तक पूरा साल नहीं गुजरा, क्योंकि आपका साल चल रहा है। तो इस 10 लाख की भी आप 10 शाबान में ही जक़ात अदा करेंगे। 10 लाख अगर आपके पास आ जाता तो 14 लाख शुमार होते, उसकी जक़ात अदा करनी है। अगर 10 शाबान के से एक दिन बाद कोई माल आता है, 11 शाबान को आपके पास 15 लाख आता है, तो उसकी जक़ात अगले साल आप देखेंगे, इस साल आप अदा नहीं करेंगे। तो ये बात थी कि निसाब पूरा होने के बाद हर रुपए और काबिल जक़ात अमवाल पर साल गुजरना लाजिम नहीं है। अब जक़ात का हिसाब लगाने का तरीका कार क्या होगा? जक़ातेबल एसेट्स जो है, सोना, चांदी, नकद रकम, माली तिजारत, उनकी जो करंट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू जो है, तो वो यहाँ पे आप लिखेंगे और उसको मैनेज करना है अपनी लाइबिलिटीज से। आपके ऊपर जो कर्जे वगैरह है, डिडक्टेबल जो अमाउंट है या चीजें हैं, उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास जकातेबल अमाउंट आपकी निकल आ जाएगी, या जिस चीज की आपने जक़ात अदा करनी है, जितनी अमाउंट की, वो निकल आ जाएगी। अब जकातेबल अमाउंट को आप 40 पे तकसीम कर लें तो आपके पेएबल जक़ात लाजिम आएगी। आपके ऊपर जितनी जक़ात लाजिम होगी वो निकल आ जाएगी। उर्दू में मैंने इसी को बयान किया कि काबिल ज़कात असासे जो है, उसमें से जिम्मेदारियों को यानी कर्जों वगैरह को माइनस करेंगे तो काबिल ज़कात मालियत निकल आ जाएगी। काबिल ज़कात मालियत यानी जिसकी आपने ज़कात अदा करनी है, उसको 40 में तकसीम कर देंगे तो 2.5% जो है आपका वाजिबुल अदा ज़कात निकल आएगा। आपका वाजिबुल अदा ज़कात निकल आएगा। ये फार्मूला आपको बता दिया। इस फार्मूले के तहत जो है आपने अपने ज़कात को निकालना है। तो खुलासा दोबारा अर्ज करने लगा हूं पूरे सेशन का कि ज़कात किस पर फर्ज है। पहला सवाल है, हर साहिब, हर मुसलमान, आकिल बालिग मुसलमान पर जो कि साहिब निसाब हो और साल उस पे गुजर चुका हो और माली वाजिबात से जायद हो, उस पे ज़कात लाजिम है। और दूसरे नंबर पे कि ज़कात किन अमवाल पे लाजिम है? सोना, चांदी, नकदी, इन 3 चीज़ों पे हर हालत में और हर शक्ल में लाजिम होती है। और चौथे नंबर पे माली तिजारत है। माली तिजारत से मुराद कोई चीज़ आपने खरीदी है बेचने की नीयत से और अभी तक बेचने की नीयत बरकरार हो तो वो माली तिजारत है। फिर उसके बाद निसाब का बता दिया। निसाब की 2 किस्म है, निसाब बराए वजूब ज़कात और दूसरा जो है निसाब बराए हिरमान ज़कात। बराए वजूब ज़कात क्या है कि सोना अगर है, सिर्फ सोना है तो 7.5 तोला सोना है। अगर चांदी है या नकदी है या माली तिजारत है या सोना और चांदी है या चांदी नकदी माली तिजारत है या सोना चांदी माली तिजारत और नकदी है, तो इन तमाम सूरतों में चांदी के निसाब का एतबार होगा। इसी तरह कुछ चीजें जो है, कर्जे वगैरह जो है, वो जकातेबल एसेट्स से वो माइनस हो जाते हैं। जक़ात का हिसाब लगाने की तारीख भी आपको बता दी और इसी तरह ज़कात अदा करने का जो तरीका है, फार्मूला है, वो आपको समझा दिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए
और हमें ज़्यादा से ज़्यादा दीन की खिदमत की तौफीक नसीब फरमा दे। हमें कुरान हदीस फ़िक़्ह और उनसे मुतालिका उलूम और फ़नून की ऐसी फ़हम नसीब फरमा दे, ऐसी खिदमत नसीब फरमा दे जो क़यामत तक कायम दायम रहे और हम सब के लिए सबका जारिया बन सके। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बकिया जो मसाइल है इंशाअल्लाह वो कल बयान करेंगे। ये दूसरा निसाब कौन सा है, यानी मुस्तहिक की ज़कात कौन है, इंसानी माशरे की तीन तबक़ात कौन से है, ज़कात की अदायगी के लिए शराइत क्या है, किसको ज़कात नहीं दे सकते, कर्ज पे ज़कात के अहकाम क्या है, शेयर्स पे ज़कात के अहकाम क्या है, कारोबार की जदीद जो सूरतें हैं, सर्विसेज का कारोबार है, ट्रेडिंग सेक्टर है, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल सेक्टर है जिसको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। तो ये सब इंशाल्लाह कल आपके सामने बयान कर देंगे। अब अगर आपका कोई सवाल है, आपने कोई सवाल पूछना है तो सवाल पूछ सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।